मेरे ग्रैंडफादर भी टेक्सटाइल्स में थे. He was into trading of threads. And then my father came in 1987. तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है. Then he built a 45-50 crores business in 20 years from 1986 to 2006. कोई फ्लॉप आइडिया? फ्लॉप तो एक्चुअली we were doing well and we thought कि सेलिब्रिटी मार्केटिंग करते हैं, उससे बहुत रिजल्ट्स आएंगे. तो हमने ले लिए, कैंपेन शूट करा, सब करा, बट वो कुछ नहीं चला. तो हमें ये लगा, आई थिंक इट्स मोर नॉट अबाउट टेकिंग अ सेलिब्रिटी, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट दैट स्टोरी. इट्स अबाउट हाउ यू यूज दैट डिजिटली. कोई ऐसा चैलेंज जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट ब्लॉक एवरीथिंग फॉर यू? आई थिंक कोविड जब हिट हुआ तो 6 महीने तो वो बिल्कुल ही वो साइलेंट. He couldn't open factories. And it was not only 6 months. हमें पता भी नहीं था कि कितना टाइम लगेगा. But वो एक टाइम था 6 महीने की revenue was zero, cash flow was nil. Hi, my name is Abhishek and I'm the founder of the company Webby Solutions Private Limited. And with me is Mr. Dheeraj. Dheeraj, please introduce yourself to our guests, to our audience. So, hi guys, I'm Dheeraj Bhatia. It's been 12 years. I've been D2C, not a veteran, but yeah, a D2C player in the industry for the last 12 years, leading Gridstones and now heading Mr. Button, probably creating brands and systems served millions of customers over the years. And today episode, I'll decode what exactly it takes to be a fashion brand in India. Great. So welcome Mr. Dheeraj Bhatia to the show. Thank you. Thanks for joining in. Thank you for having me. Right. So Dheeraj ji, जैसे we were talking for a brief moment just before this, and you also mentioned about that you did actually have scaled a few brands, fashion brands. Right. But before we go into the fashion, the business side, can you tell me about who is Dheeraj Bhatia? So I've been I've been a business person for the last 12 years, and when I go home, I actually think about the business only, or the strategies the next day that I want to build, right? In fact, my wife, she often jokes about it that whenever she sees my phone, my calculator is always on. तो मेरे कैलकुलेटर में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस या ये कैसे कर सकते हैं वो चल रहा होता है. तो यूजुअली आई एम थिंकिंग अबाउट बिजनेस, अबाउट वर्क ऑल द टाइम, बट व्हेन आई एम ऑफ दैट, आई एम quite a chilled out person with my friends, with my cousins, but वो बहुत rare होता है. But usually I'm thinking about business. Right. So, like that's, I mean, as an entrepreneur, so thinking about business. But however, what does your wife tell to you जब आपके कैलकुलेटर ऑन होता है आपके फोन पे? आपने वो चीज छुप गए नहीं, वो कुछ नहीं actually. So I'm born in a Sindhi family. So and she comes from a different background. She comes from a Punjabi background. तो यही मजाक उड़ाती है कि सिंधी का कैलकुलेटर ऑन ही रहता है पूरा टाइम, because we keep thinking about the next things, right, to do and what to do. So yeah. So you're very good in like planning and strategy. तो ये तो मतलब पूरा गुण है आपके अंदर पूरा. हाँ, मतलब I mean मजा भी आता है उसमें. और so enjoy it. That's great. I'm fine with it. तो आपके जो क्लोज फ्रेंड है या कुलीग्स हैं, आपको अगर 3 वर्ड में कुछ बोले तो क्या बोलेंगे? 3 वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे? अच्छा, I think they would know me very differently. मतलब I don't know to find a word in common. But I think probably witty is one word, right? I'm probably witty in my work and my friends, like jokingly. And I think I'm quite driven. I think I'm like, चाहे पर्सनल प्लान्स भी बनाने हो तो I'll take the lead कि नहीं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. I'm not somebody जो कहते हैं हाँ तुम कर लो, I'll come. So I'm like driven and passionate. I like to lead the things in work also and in like personal space also. Okay, so you control your life and the flow. कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता, बट आई ट्राई टू बी एज probably discipline तो मैं नहीं कहूँगा, बट ट्राई टू प्लान थिंग्स इन एडवांस. Great. So that's a great thing and it's very important. It's important. ठीक है, तो आप क्या शुरू were you always an entrepreneur or this journey a stunt came as a surprise? आपने थोड़ा बताया था, हिंट दिया था कि you had an entrepreneur journey for 12-14 years. Right. But about your background, like family background and stuff like that. So I think we always thought of doing a business because मेरे grandfather भी textiles में थे. He was into trading of threads.
एंड देन माय फादर केम इन हम्म 1987. हम्म तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है. हम्म तो ही सेट अप वन स्मॉल फैक्ट्री. उसमें एक ही मशीन ली लोकल. हम्म एंड उन्होंने एक चेयर लगाई हम्म बाहर. एंड देन ही बिल्ट 45-50 crores business in Okay. 20 years from 1986 to 2006. And that was in which city? Textiles Great. in manufacturing. Great. तो and he came from Agra, very like हाँ हाँ small boy. I saw seen his house. मैंने हाँ घर देखा है वो. तो that journey from zero to that scale, so that's commendable. तो मैंने वही देखा है. तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि हमें बिजनेस ही करना है. हम्म और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि we can probably do a job. तो always I think an entrepreneurial Great. mindset, always. Great. And what was your first taste of business? जैसे आपने बोला your father actually inspired you. And when did you tasted your first खून कब लगा आपके मुंह पे as a business owner? तो एक्चुअली मैं बहुत छोटा था. तो हाँ माय एक्चुअली फादर एक्सपायर्ड वेरी अर्ली. 2006 एक्सपायर्ड. आई वाज ओनली 13 years old. हाँ तो माय मदर केम इनटू द बिजनेस बिकॉज कोई हाँ था नहीं संभालने वाला. हाँ तो माय मदर केम इनटू इट, राइट, एंड शी वाज अ हाउसवाइफ टिल देन. हम्म तो माय मदर ऑब्वियसली डिड ग्रेट थिंग्स, नॉट एट दैट स्केल ऑब्वियसली. हम्म सो आई जॉइंड इन व्हेन आई टर्न्ड 18. हम्म तो मैं 18 साल का हुआ. तो यूज्ड टू गो टू कॉलेज, एंड आफ्टर कॉलेज यूज्ड टू गो टू फैक्ट्री हम्म टू माय लाइक मॉम्स प्लेस. तो वहाँ मैं देखता था कि मशीन्स लगी हैं, सब लगी हैं. एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि इसमें मेरा क्या काम है, बिकॉज मशीन्स चल रही हैं, वो ऑर्डर आ रहे थे. हाँ तो मेरे को लगता था मैं क्या करूंगा. हाँ तो आई मेरा ऑलवेज रोल क्या है फेल्ट वहाँ पे? हाँ कि मेरा क्या रोल है, हाँ मतलब मैं सिर्फ सुपरवाइज करने के लिए तो हो नहीं. हाँ एंड मैं 18 साल में क्या कर सकता हूँ उसमें. हाँ तो मैंने कुछ अकाउंट्स को फोन करा हम्म कि आप बैड डेट्स के ना मेरे को लेजर दो. हम्म मैंने सारे वेंडर्स देखे, हमारे कुछ काफी वेंडर्स थे जो बैड डेट्स थे. आई हम्म स्टार्टेड कॉलिंग देम हम्म कि ये है, ये आपका बनता है, आप प्लीज दीजिए. वेरी हम्म स्वीटली. 18 साल, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कैसे होता हम्म काम. हम्म एंड देन किसी ने मेरे को ऑनर करा नहीं. तो आई स्टार्टेड विजिटिंग देयर फैक्ट्रीज. हम्म तो मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं सबकी फैक्ट्रियों में जाने लगा हम्म कि दिया दिस इज योर बैलेंस, एंड हमने सब डिलीवर करा है, आपने पेमेंट्स क्यों नहीं करी है. सो आई वाज मैं ऐसी सोफा होता था फैक्ट्री में, एंड मैं वेट करता था पूरा पूरा दिन कि मेरे को वो एक चेक मिल जाए या मैं वो रिकवर कर दूं. तो आउट ऑफ आई थिंक 20-25 मैंने 3 या 4 चेक्स जो बैड डेट थे हमारी बुक्स में वो रिकवर करे. एंड वो भी कुछ लाखों रुपए थे 2011. हम्म तो मेरे को लगा यार, मतलब आई मेड मनी फ्रॉम नोवेयर. हाँ इट वॉज अ बैड डेट इन माई अकाउंट हाँ एंड नो बडी वॉज फॉलोइंग अप. एंड मैं क्या करता, तो मैं कॉलेज के बाद गाड़ी लेके उनकी फैक्ट्री चले जाता था एंड वेट करता था. एंड 1-1.5 महीने बाद, हाँ मतलब मैं जिद करता रहा, तो उन्होंने दे दिए 1-2 लोगों ने. तो आई ग्रेट. थिंक आई मेड माई फर्स्ट मनी आउट ऑफ दोज बैड डेट्स वाला. हाँ और जब वो परसिस्टेंस और परसेवरेंस के बाद आता है तो दैट्स लाइक अ बोनस राइट. हाँ हाँ, पूरी तो आई मेहनत केप्ट ऑन मेहनत फॉलोइंग, हाँ आई केप्ट ऑन. तो वो इरिटेट हो गए कि ये रोज आ हाँ जाता है. तो आई केप्ट ऑन हाँ फॉलोइंग बिकॉज आई ग्रेट न्यू हमने दिया है, हमारा हाँ कुछ गलत नहीं. मेरे को समझ नहीं आता था क्यों नहीं दे रहे हो. हाँ सो आई हैड दैट माइंडसेट कि क्यों नहीं दे रहे हो यार, हमने इफ यू हैव डिलीवर्ड. राइट तो 1-1.5 2 महीने हुआ, फिर भी 20 में से 3 ही आए, 17 नहीं आए. बट वो 3 आ गए, कुछ 1-2 लाख बन गए. एंड आई वाज लाइक यार, दिस इज, आई हैव ग्रेट. मेड माय मनी, फर्स्ट मनी. हाँ तो जब आप स्ट्रेटजी या प्लान नहीं बनाते तो आप व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड और क्रिएटिव आइडियाज कैसे आते हैं लाइक जब स्ट्रेटजी नहीं बनाते और प्लान नहीं बनाते तो क्रिएटिवली इंस्पायर्ड कैसे रहते हैं, ग्राउंडेड कैसे रहते आई थिंक ग्राउंडेड तो मैं, आई थिंक मेरे प्रिंसिपल्स, आई हैं? थिंक अगेन कम्स फ्रॉम माय डैड, राइट. हम्म उनने बहुत ऐसी स्टोरीज, और आई वाज वेरी यंग दो, तो हम्म इतनी मेरी बात कभी हुई नहीं ज़्यादा, बट हम्म जितनी हुई है तो आई थिंक आई एम वेरी ग्राउंडेड. एक स्टोरी आपको बताता हूँ. हाँ हाँ तो हम दिवाली के टाइम या अपने पुराने कपड़े किसी को दे रहे होते थे, हम्म तो आई यूज्ड टू गिव माय ओल्ड क्लोथ्स. तो स्टाफ आया, आई हम्म गिव देम द क्लोथ्स, राइट, माय ओन क्लोथ्स. एंड वो लेके चला गया, एंड उसने थैंक यू नहीं बोला. हम्म तो मैंने अपने डैड को इसको दिया, और इसने मेरे को थैंक यू नहीं थैंक यू भी बोला. नहीं बोला. हाँ तो मेरे डैड ने, क्यों बोलेगा. मैंने कहा यार मैंने दिया है. हाँ कहते यार यू शुड थैंक हिम. मैंने कहा व्हाई अच्छा आई शुड थैंक हिम. हाँ हाँ कहते यार ही इज वेयरिंग योर यूज क्लोथ्स, हाँ ही इज हेल्पिंग यू क्लीन योर वार्डरोब, हाँ है ना. सो यू शुड बी थैंकफुल हाँ दैट ही विलिंग टू एक्सेप्ट योर हाँ ओल्ड क्लोथ्स. हाँ तो वो मेरा ना पर्सपेक्टिव बदल गया टुवर्ड्स ग्रेट. पीपल वर्किंग फॉर अस, हम्म वर्किंग बीनीथ अस, कि नहीं, यू हैव टू स्टे हम्बल, यू हैव टू हम्म स्टे ग्राउंडेड, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी. हम्म एंड अगर आप कुछ भी कर रहे हो किसी के लिए, डोंट फील कि यार they'll honor you, हम्म they'll thank you. You have to be humble, you have to be respectful to us. So I think I stay grounded from, मतलब ऐसी और stories हैं जो उन्होंने बोली थी, तो I stay grounded like. ग्रेट ग्रेट हाँ क्वाइट इंस्पायरिंग. हाँ, very inspiring. या ग्रेट. सो ग्रिडस्टोन से स्टार्ट करते हैं. हाउ डिड दिस आइडिया केम और
आपने ये क्या गैप देखा, कब देखा मेंस फैशन के लिए? तो very interestingly, when I joined my mother's factory, I was 18, हाँ, and my sister is elder to me, about she's 23. ओके। So she did recently, उसने अपना post graduate in fashion she did. हम्म, So she also wanted to do something in fashion. हम्म, So then she thought कि I'll do something for some other brands. I'll make हम्म, garments for other brands. हम्म, So she started this business of manufacturing of garments. हाँ, Until then हम fabrics manufacture करते थे. ओके। उसने garments करा कि हम दूसरे brands के लिए garments बनाएंगे. हम्म, तो we used to make it for very famous brands. We हम्म, used to make it for Biba. We made हम्म, it एक Ginny and Johnny करके kids brand आता है. हाँ, हम हाँ, उनके लिए काम करते थे. Benetton के लिए हमने काम करना शुरू करा हाँ, उस टाइम पे. Then there came one online brand, Fashion New का brand था. हम्म, एंड वो ऑर्डर देता था और हफ्ते में वापस आ जाता था ऑर्डर लेने. अच्छा, वो ऑनलाइन ब्रांड था. तो सबको लगा यार ये ऐसा कहाँ बेच रहा है कि एक हफ्ते में इसका रिपीट ऑर्डर आ जाता है. हाँ, तो देन वी फिगर्ड आउट कि देयर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन करके कुछ शुरू हुआ है. हाँ, 2010 की बात है ये, 2010-11 कि कुछ ये न्यू हाँ, शुरू हुआ है. हाँ, यहाँ पे ऐसे आप लिस्ट करो और आपके हाँ, कपड़े बिक जाते हैं. हम्म, तो वो कंपटीशन ही नहीं था, वो कोई हम्म, अकेला कर रहा था और वो हर हफ्ते रिपीट ऑर्डर देता था. हाँ, तो हमें लगा यार कि हम इसके लिए कर रहे हैं, हमारे पास फैब्रिक भी है, हम अपने ही बना अपने लिए देते हैं. नहीं कर सकते। तो तब हमने 2011 में अपना शुरू करा. हम्म, आई थिंक fashioninu.com था हम्म, जहाँ से हमने अपनी पहली सेल करी थी. ग्रेट। तो दिस केम इन 2011. हाँ, सो माय सिस्टर स्टार्टेड इट एंड देन आई जॉइंड हर इन 2013. 2 साल बाद आई जॉइंड ग्रेट। हर. तो कुछ इंस्टेंस या कुछ स्टोरी आप अभी शेयर करना चाहते हो जो व्हेन यू स्टार्टेड, व्हेन यू जॉइंड एक्चुअली, उसके बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ मतलब देयर वर मेनी. हाँ, हाँ, मतलब इफ यू आस्क एनीथिंग स्पेसिफिक हाँ, तो आई कैन टेल, बट हाँ देयर वर मेनी इंसिडेंट्स. मतलब मेरे को याद है क्योंकि ऑनलाइन शुरू हुआ था, हाँ, बट हम भी कर रहे थे ऑनलाइन एंड हाँ, वी वर ग्रोइंग आल्सो, बट वी ऑलवेज थॉट कि यार ये कितना ही बढ़ जाएगा. हाँ, हाँ, तो हमें लगता था कि हमने थोड़ा बहुत ब्रांड बना लिया है, हाँ, क्यों ना हम रिटेल स्टोर्स में जाके हाँ, अपने कपड़े दिखाएं और बोलें कि यार ये रख लो. हाँ, तो वी स्टार्टेड गोइंग टू रिटेल स्टोर्स. जितने रिटेल स्टोर्स दिल्ली में है, वी हम्म, स्टार्टेड गोइंग टू देम. 2013 एक एक अपनी टी शर्ट्स हाँ, और वो लेके जाते थे एंड वी हाँ, कि यार वी आर डूइंग वेरी वेल ऑनलाइन. हाँ, हाँ, तो उनको लगता था ऑनलाइन क्या होता है. जो जितने रिटेलर्स होते थे दे नेवर इवन थॉट अंडरस्टूड अबाउट इट। हाँ, या थॉट अबाउट इट कि ऑनलाइन क्या होता है. हम्म, कहते ये वहीं चलेगा, यहाँ नहीं वहीं चलेगा. चलेगा। हाँ, तो मैं जानता हूँ मैंने कितने कितने बड़े रिटेल हाँ, स्टोर्स ने मेरे को मना करा हाँ, कि नहीं ये नहीं चल सकता. एंड मेरे को अभी भी याद है 2018-19 में हाँ, जब एक ब्रांड बन गया था और तब ऑफलाइन के ब्रांड नहीं होते थे, तो हमें हम्म, मेल आती थी कि हम्म, हमारे स्टोर्स में आप माल रख लो. हम्म, एंड वो सेम स्टोर हमें मुंह पे मारा कि ये नहीं चल सकता, हम्म, आप ऑनलाइन तो हमें पता ही नहीं है, वो एक हम्म, बबल है और ये कभी भी खत्म हो जाएगा. हाँ, तो मेरे को नहीं लगता, तो ये यहाँ नहीं चलेगा. हम स्कैम है, स्कैम है। ये हाँ ये स्कैम है, ये बबल है, हाँ, ये अभी आया है, 1-1.5 साल में खत्म हो हाँ, जाएगा, तो हम नहीं रख सकते एंड ये. दैट वाज वे बैक इन दिस वॉज इन 2012-13. 12 आई 13। रिमेम्बर द वर्ड्स क्लियरली. मेरे को हाँ, शॉपकीपर की शक्ल याद है, मैं ऐसे देखा आता था वो मना कर देते थे. हाँ, तो ये बहुत हुआ है, हाँ, रिजेक्शन बहुत लिया. हाँ, ग्रेट, 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 ग्रेट। तो जैसे कि 10 साल पहले ई कॉमर्स बहुत डिफरेंट था, जैसे आपने बहुत बताया. different तो पहले आपने जैसे अपनी वेबसाइट से स्टार्ट किया या कोई मार्केट प्लेस वगैरह पहले ऐड किया? नहीं, तो वेबसाइट का तो फैशन ही नहीं था. हाँ, हाँ, मतलब नोबडी वाज इनटू वेबसाइट. उस हाँ, टाइम पे टेक ही नहीं था. उस टाइम पे लोग ही हाँ, नहीं मिलते थे जिन्होंने ई कॉमर्स करा होता था. हाँ, तो वीवर मतलब द पाइनियर्स, हम तो जितने हाँ, हैंडफुल ऑफ लोग थे उस टाइम पे. हम्म, तो हमने मार्केट प्लेसेस शुरू करे. हम्म, उस टाइम अमेजोन भी मेरे ख्याल से एंट्री बाद में हुई हाँ, थी इंडिया बाद में में. हुई है बिल्कुल। तो उससे पहले तो जो प्लेटफॉर्म तो शायद आज नहीं है, ट्रेडर्स.com करके एक प्लेटफॉर्म हाँ, और इंडिया में नहीं है. हाँ, फैशन न्यू मैंने बताया, वो प्लेटफॉर्म नहीं है आज हाँ, इंडिया में. हाँ, फिर उसके बाद एक होम शॉप 18, हाँ, वो बहुत फेमस है, हमने वहाँ शुरू करा. हमने टीवी में बेचना शुरू करा. हाँ, तो टीवी में 1 घंटे का स्लॉट होता था. हम्म, वहाँ पे जो जहाँ बर्तन और यूटेंसिल्स भी बिकते हैं, वहाँ पे हम्म, टी शर्ट्स और टॉप्स बिकते थे ओके, कि 1 घंटे में पैक ऑफ 3 कुर्तीज आप इतने हाँ, में ले हाँ, लो. हाँ, हाँ, तो हमने वो करना शुरू करा. उसके बाद केम इन प्लेटफॉर्म लाइक जबोंग, हम्म, फिर फ्लिपकार्ट, देन मिंत्रा, देन अमेजोन. तो उसके बाद जर्नी वहाँ शुरू हुई मार्केट हाँ, प्लेस मार्केट की. प्लेस की तब। मार्केट प्लेस की जर्नी वहाँ शुरू हुई. ग्रेट, ग्रेट। तो जैसे जो ओरिजिनल मार्केट प्लेस टीवी था या फिर जो होम शॉप 18 वगैरह जो आपने सब में किया है, दैट डजंट एग्जिस्ट. दैट्स एक्चुअली स्टार्टेड योर जर्नी। दैट स्टार्टेड माय जर्नी. दे हाँ, डोंट एग्जिस्ट, ट्रेडर्स दैट एग्जिस्ट इज, नहीं हाँ, करता, फैशन यू नहीं करता, होप हाँ, शॉप 18 अब शायद आई डोंट थिंक सो हाँ, आता है. तो इन पहले 1-2 साल तो हमारा रेवेन्यू यहीं से आता था. हाँ, हाँ, तो जबोंग, मिंत्रा, ये प्लेटफॉर्म से बहुत बाद में आए हैं. हम्म। तो इज द लाइफ ऑपरेशनली इजियर नाउ और ऑपरेशनली इजियर दिया? आई थिंक इट्स मच मोर डिफिकल्ट नाउ. हाँ, तब एक्चुअली क्या होता है व्हेन यू आर यंग, व्हेन
when you don't know कि क्या हम्म होने वाला है, right? And when you don't have expectations out of the work, because आप न्यू काम शुरू कर रहे हो, आपको कोई expectations नहीं होती अपने काम से, हाँ आपको लगता है यार हो सकता है चल जाए, हो सकता है नहीं चले, but after reaching to a certain point, हाँ every day you get up with an expectation. हाँ आप जिसके साथ काम कर रहे हो उसको भी आपसे बहुत expectations हाँ है, because you come from a background. करेक्ट तो he also has an expectations from you कि आप नहीं, आप ये deliver करोगे. So I think वो mind अब ज्यादा चलता है, and अब वो एंड ज्यादा, व्हेन क्रिएट प्लान्स तो एक एक्सपेक्टेशन तो ऑटोमेटिकली सेट हो गई and कि अगर इतना आप गोल प्लान, सेट करना ही है आप एट द गोल, एंड जैसे एंड अगेन उस टाइम हाँ मेच्योर भी थे, अब आई थिंक हाँ मोर मेच्योरिटी ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी हाँ वर्कड आउट. ग्रेट तो आई थिंक अब आई थिंक ज्यादा टफ है, हाँ ग्रेट ज्यादा टफ और ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ टूल्स यू यूज या जैसे बाकी चीज यूज करते हैं इज इट मोर इजियर टू लाइक स्केल देन अर्लियर है. टूल्स एंड देन द मतलब व्हाट एवर टेक्नोलॉजी, यू थिंक विच हेल्प्स यू स्केल थिंग्स जैसे अभी कई सारे मार्केट प्लेस आ गए राइट. हाँ आई थिंक अब तो एज अ बिजनेस ओनर इट्स मोर इजियर नाउ आई मीन आई थिंक इट्स मोर अपॉर्चुनिटी इजियर नाउ, अपॉर्चुनिटी बिकॉज वाइज एक तो एक्सेसिबल हो गया है, हाँ और मेरे को सबसे बड़ा लगता है ह्यूमन रिसोर्स आराम से बहुत प्लेंटी आ गई ई कॉमर्स हाँ में. उस टाइम जब हम रखते थे वी हैड टू ट्रेन एक एक हाँ बंदे को, उस टाइम ई कॉमर्स पता ही नहीं था. हाँ ऑर्डर्स कैसे शिप होंगे, वेयर हाउस हाँ में कैसे पैक होंगे, लेबल राइट कैसे लगेगा, राइट इनवॉइस कैसे अंदर जाएगा, मैनिफेस्ट क्या होता है. हाँ वी हैड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. हम हम्म पहले प्रोसेस, मैं खुद वेयर हाउस में हम काम करते थे हम्म कि ये काम होगा कैसे. उस टाइम प्रिंटर्स, लेबलिंग प्रिंटर्स नहीं होते थे, अब तो हम्म बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, सब आ गया. उस टाइम पे एवरीबडी वाज इवॉल्विंग. हम्म उस टाइम तो इंडस्ट्री पूरी न्यू थी, तो सभी इवॉल्व कर रहे थे. ग्रेट लोग आते थे, टेक किसी का फट जाता था, वो हाँ बैड एक्सपीरियंस 404 एरर आ जाता था. तो हाँ उस टाइम तो बहुत चीजें होती थी, तो करेक्ट फिर हम सभी सीख रहे थे. बट आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स मेरे को लगता है अब बहुत इजीली मिल हाँ जाता है. ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स आराम ट्रेन नहीं से करना, उस टाइम बहुत ट्रेनिंग करनी हाँ पड़ती थी. ग्रेट सो दैट्स ग्रेट टू नो और जो आपने कुछ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई रिसर्च जो विच वर्क फॉर यू एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर या ऐसा कुछ जो फ्लॉप हो गया मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, हाँ आई थिंक मैनी. फ्लॉप तो बहुत हुए हैं. हाँ तो वही बताइए फ्लॉप तो बहुत हुए हैं. एक हिट बताता हूँ पहले हाँ तो. मिंत्रा के साथ एक्चुअली वी स्टार्टेड हाँ डूइंग रियली वेल. हाँ मिंत्रा के साथ हमारे ऑर्डर्स बहुत अच्छे हो गए थे. वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स ऑन मिंत्रा हम्म इन मेंस टी शर्ट्स. कैजुअल ओके वेयर में हम बिगेस्ट सेलर थे मिंत्रा के, वन हाँ ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स. हाँ तो उनकी अगेन आई थिंक एंड ऑफ सीजन सेल, जो एक हाँ हाँ सीजन सेल आती है, तो उन्होंने एक हमें ऑफर दिया कि लेट्स डू सम मार्केटिंग टुगेदर. हमने कहा क्या मार्केटिंग. तो उन्होंने कहा कि लेट्स डू अ फेसबुक लॉग आउट पेज ऑल हम्म ओवर इंडिया. हम्म जो भी फेसबुक से लॉग आउट करेगा उसको मिंत्रा दिखेगा और ग्रिस्टोन दिखेगा, ओके एंड दे विल डायरेक्टली लैंड टू योर पेज, मतलब मिंत्रा के लैंडिंग ग्रिस्टोन्स के पेज पे पेज पे. हाँ तो मैंने कहा ठीक है. अब क्योंकि ऑल ओवर इंडिया था, फेसबुक का लॉग आउट पेज था, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी थी. हाँ हाँ बट हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स करते हैं, हाँ बिकॉज वी वर वर्किंग सो क्लोजली विद मिंत्रा एंड वो हम्म इतने ऑर्डर्स थे, तो वी डिडंट वांट टू लूज आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. हम्म हमने कहा करते हैं. वी डिड दैट. एट दैट टाइम इन 2014-15, हम्म or probably we did 25,000 orders in a single day. ओके उस टाइम पे ये ऑर्डर सुने ही नहीं थे, ना हाँ मिंत्रा ने ना हमने, कि एक ब्रांड, हाँ ओवरऑल मिंत्रा बहुत करता होगा, बट एक एक ब्रांड ब्रांड से 25,000 ऑर्डर एक दिन में 24 घंटे में कर सकता है. हम्म तो अपने आप में हिस्ट्री थी, हम्म उनके लिए भी हमारे लिए भी. बट दैट वाज द पावर इवन देन हम्म डिजिटल की, एंड एक स्ट्रैटेजी जो आज भी आई डोंट थिंक सो फेसबुक का लॉग आउट पेज कोई सोचेगा लेने का, हम्म कि अगर लॉग आउट करेंगे और तो एक ब्रांड दिखेगा. हम्म तो उस टाइम भी आई थिंक वो बहुत ही क्रेजी स्ट्रैटेजी थी जो हमने करी मिंत्रा के साथ. और कोई फ्लॉप आइडिया फ्लॉप तो बहुत है. हाँ तो फ्लॉप तो एक्चुअली वी वर डूइंग वेल एंड वी थॉट कि हाँ सेलिब्रिटी मार्केटिंग करते हैं, उससे बहुत रिजल्ट्स आएंगे. हाँ तो हमने ले लिए, कैंपेन शूट करा, सब करा, हाँ बट वो कुछ नहीं चला. तो हमें ये लगा, आई थिंक इट्स मोर नॉट अबाउट टेकिंग अ सेलिब्रिटी, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट दैट स्टोरी. हम्म इट्स अबाउट हाउ यू यूज दैट डिजिटली. हम्म क्योंकि जो सेलिब्रिटीज वाला था, आई थिंक वो होर्डिंग्स हाँ और न्यूज़पेपर्स में अगर आप जा रहे हो डिजिटल हाँ में या प्रिंट मीडिया में या हाँ ऑफलाइन मीडिया में, हाँ तब वो बहुत अच्छा करता है. हाँ हाँ तो वो हमारे को समझ नहीं थी. हमारे को तो हाँ बस एक फोटो शूट कराएंगे और हाँ बता देंगे आ गया तो हिट हो जाएगा. हाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ you मनी, wasted a lot of money हाँ बट इट डिडंट वर्क आउट. इट डिडंट but वर्क it आउट. gave you some experience हाँ हाँ, वी मेड रियली गुड कनेक्शन. मतलब हम्म आई वी मेड रियली गुड कनेक्शंस. great so as a founder कुछ what design strategy pricing profitability how do you find that balance in सब चीज में profitability expenses design आई थिंक creativity यही
This is the factor of हाँ making a profitable brand. तो क्या आप क्या करते हो, क्या रिसर्च करते हो, हाउ डू यू कीप अपडेटेड टू फाइंड इट बैलेंस? So whenever, okay, so I think it's a mix of everything. हाँ हाँ Let's suppose अगर मैं एक न्यू डिजाइन आज भी बना रहा हूँ या हाँ टीम बना रही है, हम्म, तो मैं सबको यही कहता हूँ कि यार लास्ट 6 महीने, लास्ट 1 साल, लास्ट 2 साल का डेटा देखो, व्हाट हाँ कलर्स हैव डन वेल फॉर यू. हाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है मेरे में ब्लैक, ब्लू, व्हाइट 3 कलर्स चलते हैं. हाँ सो नाउ वट एवर प्रोडक्ट यूर लॉन्चिंग, मेक श्योर ये 3 कलर हो. हम्म, एक्सपेरिमेंट विद वन मोर कलर. वी डू नॉट वांट टू, मतलब, किल द क्रिएटिविटी ऑल्सो, राइट? हम्म, अगर इसमें लगता है ऑरेंज अच्छा लग रहा है बट मेरे पास ऑरेंज का कोई डेटा नहीं है, हम्म, तो ऐसा नहीं है हम ऑरेंज नहीं करेंगे, वी विल डू ऑरेंज. हाँ बट वील मेक श्योर कि वो 3 मेरे हैं कलर्स हाँ जो मेरे को पता है शायद शोर शॉट हिट हो सकते हैं, हाँ तो वी कैन एक्सपेरिमेंट विद वन. हाँ तो दिस इज हाउ again data and हम्म, creativity comes into the design picture as well, right? And I believe profitability भी ऐसी आती है that हाँ आप बहुत चीजें, आई थिंक मैंने देखा है बहुत न्यू हाँ वेंडर्स आते हैं, न्यू सप्लायर्स आते हैं, हाँ एंड दे रैंप अप वेरी फास्ट. हाँ अब वो रैंप अप कैसे होते हैं, जितना ज्यादा हम्म, मार्केट प्लेसेस पे यू गो डीप ऑन डिस्काउंटिंग, उतने आपके ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं. हम्म, इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, आपका प्रोडक्ट हम्म, मार्केट फिट हो गया है, हम्म, आपकी एक्सेप्टेंस आ गई है, हाँ आपको थोड़े बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको आगे से ऑफर आएगा कि थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दो, हाँ ये जीएमबी यहाँ हो जाएगा. हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दो, ये जीएमबी हाँ यहाँ पे आ जाएगा. तो वो ना जीएमबी का एक ट्रैप है, हाँ हाँ क्योंकि लोगों को नंबर्स तो वो टॉप लाइन दिख रही होती है रोज हाँ की, हाँ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बट वो बॉटम लाइन नहीं देख रहे होते कि यार हाँ मेरा मार्जिन तो यहाँ बच ही नहीं रहे. हम्म, तो वो आई थिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए. डोंट हम्म, फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ जीएमबी कि यार मेरा जीएमबी बढ़ रहा है, मेरी टॉप लाइन बढ़ रही है और हम्म, मैं डिस्काउंटिंग देता जाऊँ. हम्म, आई थिंक वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल एट हम्म, एवरी एसक्यू. हम्म, कोई एसक्यू अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, लिक्विडेट करो, डोंट हाँ मेक इट अगेन. राइट बट मेक श्योर कि आप डेटा देख रहे हो, मेक करेक्ट श्योर आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, सिर्फ टॉप लाइन हाँ नहीं देख रहे. तो वो कैलकुलेटर का डेटा यहाँ भी आ रहा है काम में। कैलकुलेटर का भी आ रहा है, और अब हमने भी, मैं नहीं देखे कुछ हाँ साल, हमने भी जीएमबी के चक्कर में वी हैव गिवन अवे, हाँ बट हाँ एक्सपीरियंस भी आ रहा हाँ तो looking back now, what do you think is your biggest learning from Gridstones है. बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम while ग्रिडस्टोन building Gridstones? Yeah. व्हाइल बिल्डिंग ग्रिडस्टोन्स. अगेन आई थिंक आई वुड जस्ट रिपीट हाँ दिस कि ओके, वन आई विल शेयर वन हम्म, वन इंस्टिंक्ट जो मेरे को आज तक लगता है दैट वी माइट हैव डन इट डिफरेंटली, तो शायद आज डिफरेंट स्केल पे होते हैं. हाँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर डूइंग वेल, एक मार्केट प्लेस के साथ हम अच्छा कर रहे थे बहुत, तो हमें एक ऑफर आया था कि हमारे साथ यू सेल एक्सक्लूसिवली, हम्म, दैट यू विल ओनली सेल ऑन आवर प्लेटफॉर्म. हम्म, एंड उस टाइम पे हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे अच्छा बिजनेस कर रहे हम्म, थे, एंड वो हमने ऑफर मना कर दी. हम्म, वाई वी सेड नो, बिकॉज वी थॉट कि यार अब बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अच्छा कर रहे हैं, हाँ वाई लूज आउट ऑन सेल्स दैट डिपेंड ऑन हाँ वन मार्केट. वन मार्केट एंड प्लेस इट साउंड्स है। प्रैक्टिकल हाँ ऑल्सो, इट साउंड लॉजिकल, बट ऐसा हुआ नहीं. हम्म, जो ब्रांड्स उनके साथ एक्सक्लूसिव, बिकॉज वी वर नॉट द ओनली वन जिनके साथ ये ऑफर किया, दे वर हाँ फ्यू अदर्स जिन्होंने एक्सेप्ट करा. वो उस टाइम पे 100 करोड़ प्लस ब्रांड्स बन गए थे विद इन हाँ 2 साल, क्योंकि हाँ इतनी मार्केटिंग लगाई गई उन हाँ ब्रांड्स पे. एंड जब वो हुआ, जब विजिबिलिटी वहां शिफ्ट हो गई, हाँ तो ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी मेरे ब्रांड की तरफ कम शिफ्ट हो गई. हाँ हाँ तो जो मैं नंबर कर रहा था मैं उससे डिप हो गया. हाँ एंड जब ये हुआ, हाँ तो बाकी प्लेटफॉर्म से भी मेरे को फिर सेम ऑफर आ गया कि अब हाँ वहां तो आप गए नहीं, तो अब हाँ यहाँ यहाँ आ आके जाओ आ जाओ। एक्सक्लूसिव. हाँ बट अगेन वी डिडंट डू इट, वी डिडंट वांट टू, बिकॉज हमें फिर अपना प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करना हाँ था और हाँ सब करना था. हाँ बट आई थिंक अगर मैं उस टाइम पे वो डिसीजन ले हाँ लेता, हाँ तो आई थिंक आई वुड हैव स्केल्ड अप हम्म, rapidly at that point of time. हाँ And again, that those brands got sold also. हाँ शायद उस मार्केट प्लेस के इन्वेस्टर्स, उन्होंने उनको कुछ ऑलरेडी हाँ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके अपना पार्टी बना लिया. हम्म। तो आई थिंक दे मेड गुड मनी एंड वो अच्छा ब्रांड बना. तो ऐसा कोई चैलेंज विच ऑलमोस्ट ब्रोक थिंग्स फॉर यू, मतलब कोई ऐसा चैलेंज जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट ब्रोक एवरीथिंग फॉर यू, एंड हाउ डिड यू नेविगेट इट? आई थिंक कोविड, हाँ जब हिट हुआ, कोविड इज अ बिग डिस्टरप्टर फॉर इज द मैनी। बिग हाँ डिसरप्टर फॉर मेनी. हाँ तो 6 महीने तो वो हम्म बिल्कुल ही इट वाज साइलेंट. हम्म वी कुडंट ओपन फैक्ट्रीज, हाँ एंड इट वाज नॉट ओनली 6 मंथ्स, हमें पता भी नहीं था कि कितना टाइम लगेगा. हम्म एंड हम सारे, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैड स्केल्ड, हम हम्म स्केल कर चुके थे, तो वी हैड लॉट ऑफ सैलरीज टू पे. हम्म एंड आई कैन से दिस फॉर श्योर कि हमने किसी के भी
उन 6 महीने में कि एक लड़के की भी, एक स्टाफ की भी हमने सैलरी नहीं रोकी. वी पेड एवरीथिंग टू एवरीबडी बिकॉज वो हमारे साथ 8-10 साल से जुड़े हुए थे. एंड वी अंडरस्टूड कि ठीक है, मतलब ये टाइम ना उनकी गलती है ना हमारी गलती है, दिस इज व्हाट इट इज. बट वो एक टाइम था 6 महीने की रेवेन्यू वाज जीरो, कैश फ्लो वाज निल. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू बिल्ड टू अ सर्टेन लेवल, तो यू आर एट अ लेवरेज. आप कुछ लेवरेज भी कर चुके हो और कुछ डेट्स भी होते हैं. तो यू हैड दैट इंटरेस्ट फ्लोइंग, यू हैड दो सैलरी फ्लोइंग. देन वी हैड अबाउट 6 वेयर हाउसेज ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हम अमेजोन के साथ जब काम कर रहे थे, तो दे वांटेड कि यार आप तो नेक्स्ट डे डिलीवरी करना है, आपको बैंगलोर में तो रखना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र में रखना पड़ेगा. तो वी हैड 6 वेयर हाउस उस टाइम पे, वहाँ के ऑफिसेज. तो अगेन एक्सपेंसेस वर माउंटिंग उस टाइम पे, एंड कैश फ्लो जीरो थे. तो वो आई थिंक 6 महीने डिफिकल्ट थे. इनफैक्ट व्हेन वी केम बैक ऑल्सो, तो ऑनलाइन इतना बड़ा हिट हो गया था, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स, बट जो लोगों के रिटेल मार्केट्स बंद हो गई थी क्योंकि लोग नहीं जा रहे थे, तो वो सारे ऑनलाइन आ गए. करेक्ट. एंड जब वो ऑनलाइन आए, तो वो मार्जिन इतने थिन हो गए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया वेंडर्स में, कि हमें जो फॉर एग्जांपल एक्स बच रहा था, वो 0.2x बचने लग गया. तो ऑलरेडी वो 6 मंथ्स का बर्डन था, और वो रिकवर होता तो वो हमारे बल्कि नेक्स्ट 1-1.5 साल भी जो हम 1x कमा रहे थे, वो 0.2x कमाने लग गए. तो आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, वो 2 साल. आई थिंक दैट रियली ट्रबल्ड अस, वो 2 साल. हाउ वी पिवटेड वाज कि हमें समझ आ गया था मार्केट प्लेस बहुत चैलेंज हो गया. अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दुनिया आ गई है, बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, थिनेस्ट ऑफ मार्जिन में माल बेचने के लिए रेडी है. सो व्हाट वी डिड वाज, हमने कहा अपनी वेबसाइट करते हैं, एंड लेट्स मेक अ ब्रांड, let's do the website, quality products based, and we won't have any competition, right? And let's get some different shoot. So we started that in 2022. But that again took about 1.5 years to scale, and but that's how we pivoted, and like we made it. Great. What's one big business mistake you're grateful for? कि ये कर दिया, चलो अच्छा है मैंने कर दिया. अच्छा ये कर दिया, ये अच्छा है. हाँ. ओहो. Now you're grateful, मतलब उस टाइम पे तो लगा था मिस्टेक है, but now you're grateful for. अरे यार, ये तो कोई ऐसी मिस्टेक जो मेरे को लगा कर दी. तब मिस्टेक थी. हाँ. अब वरना ये थैंक्स, या अच्छा मैं वो मिस्टेक करी. अच्छा वो मिस्टेक करी. यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है. मतलब आई थिंक every mistake teaches you something. मतलब कोई specific तो I cannot recall, but I think every mistake teaches you something, right? मतलब हर गलती से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और आपको लगता है ये तो नहीं करना, एंड आप ग्रेटफुल होते हो कहना कि यार ये उस टाइम कर दिया, और वो स्मॉलर स्केल पे हो गई. अब ये बड़ा स्केल है, इस पे वो चीज नहीं करनी. तो मेरे को लगता है जितनी चीजें ट्राई करनी है ना, आई थिंक एक जेफ बेजोस की बुक है 0 to 1, तो उसमें बहुत अच्छी चीज है दैट जो भी डिसीजन लेना है, इफ दैट्स अ 2-door डिसीजन, उसमें टाइम मत लगाओ. नॉट व्हाट इज अ 2-door डिसीजन, वेयर यू कैन टेक अ डिसीजन एंड रिवर्स इट if that doesn't work out. Don't waste much of a time on it, because that's a 2-door, right? आपने आज करा, आपने 2 दिन बाद रिवर्स कर लिया, नहीं चला. Only invest time in those decisions जो 1-door है. आपको पता है ये कर लिया, फिर you cannot go back, तो उसमें जितना मर्जी टाइम लगाओ. बट 2-door डिसीजन में you just implemented, success हो, आगे बढ़ो. Great. You read books a lot? I have started reading for the last 2-3 years. I have started reading books. Great. And it is working fine, like you getting. हाँ, I think you read again, get to know कि कैसे, customer obsession, how that works, right? Then small decisions in daily life, उन्होंने क्या करा, and then how you can probably get that in your life, in your business decision. I think that really helps. Right. So लोगों के experiments से you are getting benefits. I think that's a good thing. I think they're legends. Great. So आप जैसे अभी मिस्टर बटन लीड कर रहे हो, एक ब्रांड जो अपने शार्प टेलर्ड एस्थेटिक के लिए जाना जाता है, तो what drew you yourself to in this new chapter? So Mr. Button, I've been a very very loyal customer since last I think 10-12 years. 10 years से brand है वो 2015 में, right? And again what I'm wearing is also Mr. Button. So I think I've always loved their fits. मेरे को उनके fits बहुत पसंद थे. तो they were doing online at that point of time, right? And मेरे को लगा this brand will do wonders if it comes offline. Because of its connect with people with a younger generation. उस टाइम पे भी इनफैक्ट आज भी आई फील जो भी सूटिंग ब्रांड्स हैं बहुत प्लेन सूट्स बना रहे हैं, एंड दे आर रिलेटिंग टू अ सर्टेन जनरेशन. आई फील एक यंग ब्रांड हु कैन जनरेट
who can relate itself Hmm. to Gen Z's कह लो or probably millennials, I don't see any other brand than Mr. Button who can relate it so well. Hmm. So I think I was a huge fan and a Hmm. huge customer of Mr. Button. Hmm. So that's how it happened. उस time पे I opened one offline store of theirs. तो उनका पहला offline store मैंने खोला 2016 में, Hmm. and it was a big hit. उसके बाद उन्होंने 8-9 stores खोले. Again then COVID hit, तो they had to ramp it down. And then recently I think connected with the founder and I got an opportunity कि if I Yeah. want to head, and I was like all hands कि हाँ मैं I'll do Mr. Button. Great. So it's a beautiful. I think it's a great brand. Yeah, and Gridstones or Mr. Button, how are they different in positioning, product philosophy, and audience के perspective से? I think very different. हाँ. I think very different. I think Gridstones again is a very casual, affordable brands for again Gen Zs, millennials, and Mr. Button is more into a premium segment. I would say. I think where we are more into formal and wedding wear as of now. Though हम launch कर रहे हैं casual collection very soon, but again at a very different price points, targeting a very different audience altogether, right? So I think Gridstone is a more massy brand where it's more affordable and more casual. I think whereas Mr. Button falls into a much premium segment where they're catering to a different level altogether. But both brands I think do well, right? Great. And India में mass बहुत है, हाँ. premium भी अब बहुत लोग लेने लगे हैं, तो I think they both have very different positioning. Great. And thank you for explaining this. So, what are your biggest e-commerce challenge for a brand like Mr. Button today, and how are you solving this? So I think specifically I'll talk about Mr. Button. So Mr. Button, as I said, right, again to wedding wear, for example, blazers is into, right? Now blazers is a category where if you want a blazer on a certain date, you want it on a certain date. If you आपको कहीं शादी पे जाना है, फंक्शन है, इवेंट पे पहनना है ब्लेजर फॉर एग्जांपल, तो आपको अगर सैटरडे नाइट को इवेंट है, मैं आपको संडे मॉर्निंग में दे दूंगा ब्लेजर, आप मना कर दोगे. तो मेरे लिए डिलीवरी बिफोर अ सर्टेन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ लड़कों के साथ, दैट वी रियलाइज वन डे बिफोर द इवेंट की पहनना है, तो उनको एक दिन में सब कुछ चाहिए. हम नहीं प्लान कर सकते कि एक महीने बाद ये है. तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, तो उनको तो हम बदल नहीं सकते. तो हम अपने आप को कैसे बदल रहे हैं, that we are launching same day delivery and next day delivery in most of the metro and tier 1 cities very soon. तो very soon क्या, I think next week. and जब भी कोई ऑर्डर करेगा दिल्ली या एनसीआर में होगा, they'll get it on the same day, and बाकी पूरे मेट्रोज में या टियर 1 में उनको नेक्स्ट डे डिलीवरी में. Great. So I think this was the biggest challenge for the last 2-3 months I've been facing. Lot of RTOs for the brand, because I think this is a very big thing. And I think इसके बाद where we can reach customers in 1 or 2 days, like Amazon does, तो वो हो जाएगा, तो I believe then there's a great scope for the brand. Great. So delivery execution में आपको मतलब जो challenge आप इसको कर रहे हो. हाँ, hopefully I can probably great, solve it. Right. और how do you think about the omni-channel presence in marketplaces, website, retail 2025 के अंदर आप क्या करते हैं इन चीजों में? I think if you want to be a brand, if you really want to be a brand, I think you have to be present everywhere. I think you cannot just operate from your own website and believe that you are a brand. Retail में भी? Yes, I think retail outlets, marketplaces, your website, I think all three channels are very important. You see any brand that has been made, be it Snitch, be it Rare Rabbit, any brand that wants to be a brand, that wants to be recalled as a brand, they have to be everywhere. You cannot be a brand without having the omnipresence channel. I do not believe कि आप सिर्फ digital only brand हो. I think brand is where customers see you everywhere. वो phone पे भी देखेंगे, सामने पे भी देखेंगे, वो मिंत्रा जा रहे हैं वहाँ पे भी देखेंगे. So brand is a brand जो आपको हर जगह दिखता है. That's why it's a brand. Yeah. So I feel omni channel is very important. Great. So how do you think about pricing strategy and inventory risk in this competitive age? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्वेंटरी के रिस्क के बारे में क्या कहते हैं इस कंपेटिटिव एज के ऊपर में? आई थिंक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी शुड बी सच, दो चीज़ होती है, दो तरह के फाउंडर्स होते हैं या दो तरह की सोच जा सकती है. इधर आप जब क्रिएट करते हो प्रोडक्ट, आपको लगता है आपने कुछ वंडर्स क्रिएट कर दिए और आप बहुत स्टीप प्राइसिंग रख देते हो. ऐसे बहुत फाउंडर्स मिलते हैं मेरे को कि बहुत स्टीप प्राइसिंग रख देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट ऐसा है नहीं, वो बिकता नहीं है. प्रोडक्ट अच्छा होता है बट वो बिकता नहीं, बस प्राइसिंग बहुत स्टीप है. दूसरा एक लेवल क्या होता है कि यार आई हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट,
बस मेरे को सेल्स चाहिए। हम्म, वो बहुत डीप डिस्काउंट करके या बहुत हाँ लो एसपी प्राइसिंग रखता है। हाँ आई थिंक यू टू बी वेरी केयरफुल कि आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, हाँ, यू हैव टू मेक इट कंपेटिटिव। कंपेटिटिव। आपको कंपेटिटिव प्राइसिंग ही रखनी है। हम्म, तो और इतनी डीप नहीं जानी कि आपकी CM3 हम्म, या आपकी या, सैलरी कॉस्ट ना निकले। हम्म, तो देयर शुड बी अ कैलकुलेशन हम्म, कि यार ये लेवल पे रखना है, दैट वी डोंट गो इधर टू हाई हम्म, और वी डोंट गो इधर टू लो। आई थिंक हाँ वहाँ बहुत लोग करते हैं कि यार, हाँ क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बड़ा क्रिएटिव प्रोडक्ट बना दिया, इसकी ना हाँ प्राइसिंग बहुत होनी चाहिए। हाँ तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। हाँ और बहुत डिस्काउंटिंग में भी जाना जस्ट टू ड्राइव हाँ हाँ, नंबर्स, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। नॉट अ गुड तो आई अप्रोच। थिंक हाँ, तो प्राइसिंग आई थिंक बड़ी, एंड आई थिंक कीप वन प्राइसिंग। हाँ थोड़ा प्रोडक्ट फिट करो, मार्केट टेस्ट करो, थोड़ी हाँ मार्केटिंग करो, हाँ देखो कितना बिक रहा है, हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करो अपनी प्राइसिंग, हाँ एंड यू विल रीच टू अ सर्टेन पॉइंट। हाँ तो आई थिंक थोड़ी सी प्राइस एडजस्टमेंट्स पहले महीने करनी चाहिए। यू लॉन्च एट अ सर्टेन प्रीमियम, हाँ अंडरस्टैंड कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगेन इट्स वेरी डेटा ड्रिवन। हाँ हाँ, देखो कन्वर्जन कितने सेशन आ रहे हैं, करेक्ट, पूरा डेटा मतलब आई एम गैदर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक, करो। बट स्पेसिफिक इज कितने सेशन आ रहे हैं, उसमें हम्म, कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, उसके हम्म, ऐड टू कार्ट में कितने कन्वर्जन हो रहे हैं। हम्म, तो सी के सेशन तो आ रहे हैं, मतलब लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हम्म, लोगों को पिक्चर अच्छी लग रही है, बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, शायद लोगों को हम्म, प्राइस नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, तो 2 दिन के लिए प्राइस देखो, देखो फिर अगेन सेशन हम्म, देखो, सेशन और कन्वर्जन का परसेंटेज क्या है। हाँ, अगर वहां डिफरेंस दिखे तो दैट वाज प्राइस का इशू था। ग्रेट। और जैसे आप बोल रहे पहले बचपन में यू हैव टू बी अकाउंटेंट टू लर्न नंबर्स, देन यू हैव टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर टू लर्न नंबर्स, नाउ यू हैव टू बी मार्केटर टू लर्न नंबर्स। आई थिंक नंबर्स, आई थिंक डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर, मतलब एवरीथिंग इज डेटा। राइट, डेटा इज द न्यू गोल्ड, या, मतलब डेटा इज एवरीवेयर। आपका डेटा है, यू आर द किंग। राइट, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, हाँ, Amazon, they या, rolled over the years because of the डेटा, data consumers जो करेक्ट, उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे करेक्ट। और हाउ इज ब्रांड स्टोरी टेलिंग टुडे compared to performance marketing? हैं। How ओके, important is brand storytelling compared to performance marketing? राइट। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ आई थिंक that's also one thing I've हाँ learned over the years, right? हाँ, Earlier we only used to upload some ads हम्म, and do the pricing and show it to customers, right? हम्म, When we started it. हाँ But then we understood कि इससे repeat नहीं बनेगा। हाँ इससे people are buying the product, seeing the price. People are हाँ not buying your brand. हाँ If you want them to remember you, हाँ if they want, or if you want them to remember your brand, I think हाँ, there should be a story. correct. I always feel now, I didn't feel this earlier, I हाँ, didn't know this earlier. so this is how you evolved. हाँ, this is how I evolved. Now I feel story sells than हाँ, product doesn't. अच्छा, Story should be there. हम्म, आप प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, no matter, but for the repeat, हम्म, people should relate to you. हम्म, There's one brand, Blue Orange करके एक brand है, हम्म, Delhi based. हम्म, They sell t-shirts. हम्म, They sell it for 6,000 rupees. हम्म, T-shirt for 6,000 rupees. It's हाँ a normal round neck. It's a good quality हाँ t-shirt. I हाँ would हाँ say normal हाँ round neck, अच्छी quality t-shirt, heavy GSM t-shirt, हाँ good embroidery. हाँ They sell it for 6,000. हाँ Limited drop करते हैं, हाँ 15, 20, 25 t-shirts or whatever, कितने t-shirts करी, and they are sold out within minutes. हाँ, People are crazy about it. एक round neck पहन रहे 6-7,000 की, हम्म, and Blue Orange is not a global हम्म, giant, कोई global हम्म, brand नहीं है, कोई बहुत हम्म, luxurious brand बाहर से नहीं आया, हम्म, but they have made their product the king. हाँ They have made a story. They have made it so relatable to the Gen Z हाँ that everybody now who wants to probably signify something, let's say हाँ, luxury, they wear Blue Orange. right, So I believe story बहुत powerful है। हाँ स्टोरी से रिपीट बनेगा, स्टोरी से ब्रांड बनेगा। हाँ, तो आई बिलीव या, एंड अगेन सेलिंग तो करनी है, बट आई थिंक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट। great, great, great. So finally, कुछ rapid fire questions. T-shirt or blazer? ब्लेजर ओवर अ टी-शर्ट। Paid ads or organic growth? आई विश ऑर्गेनिक आ जाती विदाउट हाँ पेड, हाँ बट नहीं आती। हाँ अगेन ऑर्गेनिक इज द ड्रीम, बट हाँ. कैन नॉट हैपन विदाउट पेड। Coffee before meeting or after results? बिफोर, हाँ आफ्टर रिजल्ट्स तो हाँ, कुछ great. अलग। One founder you would love to have a time-net chat with? One founder, I think because of my industry, we talking about e-commerce, we talking about हाँ apparel. I think Siddharth from Snitch, I think he has हाँ, done remarkably well in the last 5 years. great, great. जो उन्होंने स्केल करी है, तो I believe lot to learn from. हाँ, great. If Mr. Button was a car, which one it would it be? I think Rolls Royce. I think very Rolls-Royce. classy, very premium, हाँ, and I love it. I mean, you love it if you wear it. great. And one word that defines your journey so far. So one word, हाँ, जो one आप word तो, oh, I think exciting. I would say exciting, हाँ, exciting. Every day is a new yeah, challenge. I have no idea कल great. क्या हो जाएगा, तो I think हाँ. exciting. And one word which defines your future, जो future के बारे में आपके बारे में बोलेगा, like
that defines the future. I think what I would want to be, I don't want to be like crazy. Crazy. Because I think we have to do lot bigger things. Yeah. So that should be crazy. कि Right. crazy होना चाहिए कि यार आप खुद ही तो समझो कि कैसे हो रहा है. तो So exciting past and crazy future. sounds very risky although, but yeah, I mean किसको डल नहीं चाहिए थोड़ा. I think it should be excitement. Great. So thank you, Mr. Dheeraj, for being here. You also bought some goodies. But let's show you the T-shirt you got here Thank you. for our audience to show. Yeah. Mr. Button के blazers and T-shirt. Right. तो I'll दिखाइए just एक show बार. you. Yeah. So this is again a very like grey striper blazer, right? Double-breasted blazer. So it comes with a trousers as well if you want to pair it as a suit. Otherwise, I think it look nice as a blazer also. We have one more. It is very summerish color, like light blue color, right? And it's all PV fabric. It's very, very nice. Homemade. Yeah, actually made in India. ये हमने नहीं बनवाया बाहर से. This is made in India. But this is again double-breasted. Can be paired with the denim, your trousers. So it look very nice. Great. So this is kind of a, I would say, a night event blazer, right? Little dark in color and more have a winterish feel to it. But this is again like very nice. Available on across marketplaces and own website as well, Mr. Button. So I'll show you something from Gritstones also what I've got, right? So this is a polo that we do, right? So again, made in-house. We have our own manufacturing. So this is made in-house. Flat net polo is very nice. Again, very casual. This is very unique connection that we used to do. And we still do, right? In winters. This is a like very Christmas sweater that we used to do in December and December, January. So yeah, I mean this is all collection that we do, all made in India. Great. So thank you, Mr. Dheeraj, for being here. It was really nice speaking with you and lots of learning, and I hope our audience also enjoyed it. Thank you for having me here, and to every founder out there, I think work hard, and I think India is waiting for you guys and your brands. So and hope to see you again, sir. And thank you for having me here. Thank you.